कोई भी एथलीट, क्योंकि आप बिगिनर्स हो सर्टिफिकेट कोर्स में, इसके एडवांस्ड उसके बाद डिप्लोमा होगी, तो हम अभी फिलहाल सिर्फ एंड सिर्फ आपको अपडेट करेंगे कि हेल्दी ईटिंग क्या होता है, राइट, एंड आप एथलीट्स को कैसे हेल्दी ईटिंग करवा सकते हैं। ये एक्चुअली इस क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ऊपर पूरा 1 घंटे की सेशन होगी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मैं, क्योंकि पैन इंडिया है स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ साथ बात करूंगी, ताकि जितने भी नॉन हिंदी स्पीकिंग है उनको भी समझ में आ जाए। So let me introduce myself. My name is Bani Bhushanam. I am the scientific officer in the Department of Sports Nutrition. I will handle 2 classes for you people. One is the healthy eating habit, which is for today. The second topic is on general recommendations, how you will carry out in sports. So these are the 2 things. Why basically we have this topic for the certificate course of 6 weeks is because we are trying to first give you a basic idea of why nutrition is important and how basically you will help your athlete give some recommendation, not in detail, some basic recommendations which you can give to your athletes. Since the entire class is comprised of people who understand Hindi and those who do not understand Hindi, for the sake of them, I'm going to have the entire class bilingual. So first I will either speak in English followed by Hindi, or Hindi followed by English. So this is how it is. Currently you all are muted. We will meet you people for discussion at 3 o'clock in one batch and 3:30 other batch. Sorry, 3:30 to 4 one batch and 4 to 4:30 is the second batch of discussion. So currently what I'm going to do is I'm going to start sharing my screen. You people have to tell me if you are able to see the slide. Okay. Just a moment. एक ही सेकेंड। क्या स्क्रीन शायद दिखाई दे रहा है? Are you able to see my screen with the PPT? Yeah, thank you. एक और चीज है कि मैं आपको ये स्क्रीन शेयर पे कर देती हूँ एंड पावर पॉइंट पे। अब हमें बस मुझे इतना बता दीजिएगा कि ये स्क्रीन मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। Just give me a thumbs up if the screen is moving. Okay, done. ठीक है। अब हम चलते हैं क्लास की ओर, ठीक है? राइट, आज का टॉपिक जो है वो हेल्दी फूड हैबिट्स एंड फूड सिलेक्शन फॉर एथलीट। तो मैंने आपको तो वैसे ब्रीफ कर दिया है इसके बारे में। अब आगे चलते हैं क्लास के लिए। सो पूरे क्लास में जो हम कवर करेंगे वो है कि क्यों हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए एक एथलीट, एक हेल्दी ईटिंग डाइट जो हम कहते हैं उसमें क्या क्या चीजें होंगी, हेल्दी ईटिंग एक आमतौर की जिंदगी में रहना चाहिए तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, एक हेल्दी सैंपल प्लेट फॉर अ कॉमन पर्सन, एंड देन कंक्लूड करेंगे। सो व्हाट वी विल डू इन दिस particular classes, this is the sequence how we will go about. We will say why it is important for athletes to consume a very healthy diet. So when we're talking about this, we also need to know what all things must be part of a healthy diet. So that is what we will deal in components of healthy diet. If once we know what are the components of a healthy diet, we should also know how we have to inculcate this in the as a habit in the normal life. So we will know what are the steps that must be used, the do's and don'ts, what should be consumed, what should not be consumed by an athlete. Okay, this is specifically for athletic population majorly. Okay, and the general healthy plate, how the food must be distributed, and we wind up with the summary. So this is how the entire class will go. So we will start with the class. तो हम शुरू कर देते हैं। पहली चीज है कि आज के जमाने में
आप, मैं, एथलीट्स, पूरे दुनिया प्रोसेस फूड के ऊपर काफी इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि बहुत टेस्टी भी होती है, काफी लोग पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि प्रोसेसिंग फूड हमारे लिए एक चीज है कि आसान बना दिया है जिंदगी को, खाना पकाने के तौर पे, या हमें कोई भी चीज बहुत इजीली मिल जाती है, लेकिन क्या ये चीजें हेल्दी है? डेफिनेटली नॉट। तो एक्चुअली जो आसान बनाने के चक्कर में, इसके साथ साथ जितना रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि हमारी KFC, मैकडीज, ये सारी चीजें जितने भी आ रहे हैं, उन्होंने अपना मार्केट बढ़ाने के लिए हर दुनिया में हर जगह पहुंचा दिया है, राइट। ये अर्बनाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ गांव गांव में भी पहुंच गया है। इसके चक्कर में हमारा पूरा लाइफस्टाइल जो है, हमारी चीजें जो हम एक जमाने में हमारे पेरेंट्स करते थे, हमारे दादा दादी नाना नानी की तौर तरीके होते थे खाने को लेके, वो सारा चीजें अब नहीं है हमारे साथ। So what I was trying to tell in Hindi is, at one point of time, our parents, grandparents, their parents, great grandparents, they had a different lifestyle. Now we have very ease of food which comes into our plate, very less cooking, very less procedures. Everything is so very easy. Based on this, including the urbanization, because of big food chains like KFCs, McDs, whichever you call it, there are n number of food giants which provide us, and they've come and reached us because of the urbanization. This has caused a lot of changes in the way that we live, including how we eat. So this has caused a disturbance in the dietary patterns, and this is also affecting athletes. So what is happening, because of which what is ultimately happening is, anyways, we are consuming an unhealthy diet. Even the athletes are most often consuming an unhealthy diet because they are not having enough information on what is healthy, what is not healthy, what could be good alternatives to a diet. So this is causing a lot of health issues, and therefore people are encouraging physical activity, like how we have Fit India, which encourages physical activity. तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इतना हमारे आसान हो चुका है खाने पीने का तौर तरीके, कि बहुत अधिकतर अगर हम देखते हैं, एथलीट्स का भी खाना अनहेल्दी हो रहा है। हालांकि उनके पास काफी फिजिकल एक्टिविटी है, फिर भी हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरे ही अपने एथलीट्स, क्योंकि मैं साई में हूँ, मुझे बच्चों के साथ इंटरैक्शन काफी ज्यादा होता है। हम जब बच्चों के देखते हैं, हमारे पास ब्लड की भी असेसमेंट होती है साई में, राइट। जब हम इन ब्लड रिपोर्ट्स देखते हैं, अधिकतर बच्चों को हमने ये नोटिस करा है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है, किसी किसी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई है, किसी किसी में LDL बढ़ा हुआ है। ये सारी चीजें किसमें होती हैं? बुजुर्ग में होती है, जिनका हेल्दी डाइट नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता। वैसी चीज जो एथलीट्स हैं उनमें भी पाया जा रहा है। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उनका खाने पीने का तरीका अच्छा नहीं है, भले ही वो फिजिकल एक्टिविटी करें। Why I have brought this point to you for information is this. This is really very important because I work with athletes. I work with n number of athletes since I work with Sai. I'm an integral part of Sai, having worked with more than 2,500 athletes. What I've seen is, across their blood pictures, when we take their blood test and see their blood profiles, we see that their blood picture has values similar to people who are unhealthy at an older age. They have high cholesterol, some of them have a high LDL, some of them have high TGL, triglycerides. They have a very unhealthy picture. So though they are physically active, because they have a very unhealthy picture, it is important that their diet must be healthy so that their health also is healthy, plus their performance is enhanced. We all know that cholesterol, sugar, all these are part of non-communicable diseases, they are generally called, but these non-communicable diseases has a stem with a very unhealthy lifestyle.
जो बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, जितने भी कैंसर, ये सारी चीजें हम कह रहे हैं, अधिकतर ये जो कारण जो होती है वो अनहेल्दी ईटिंग की वजह से, अनहेल्दी खाना खाने की वजह से होता है। इसीलिए वो भले वो एथलीट हो या नॉर्मल पॉपुलेशन हो, अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर हम अच्छे खाने चूज नहीं करेंगे तो हमारा हेल्थ बिगड़ सकती है, बिगड़ती भी है। नहीं, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी एथलीट्स को हेल्दी रखना एज अ कोच हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी खाने की हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिस है वो शुरू से ही होना चाहिए। आपके पास बेसिकली बच्चे जो आते हैं वो ग्रास रूट लेवल पे आते हैं, ट्रेनिंग आपसे शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो आपके साथ खेलते खेलते 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे खेलते खेलते वो बड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे उनका परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है, वो एक और कोच के साथ एक अच्छी या जो फैसिलिटीज जहां बढ़िया होती है वहां वो पहुंच जाते हैं ताकि उनका करियर बन जाए। इसीलिए हमें जरूरत है कि स्पेशली जब आप बच्चों को फंडामेंटल फाउंडेशन देते हैं, आप सबसे इंपॉर्टेंट हो जब बच्चों को फाउंडेशन दे रहे हैं। अभी आपको शुरू करना है कि हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस आपके एथलीट्स में शुरू करवाने के लिए। As coaches who have now the current exposure to train athletes at a grassroots level, you are very, very important, because once the healthy dietary habit starts at a very early life, that is with you, then slowly that becomes a habit so that they do not go away into practices which are unhealthy. You are very crucial in disseminating this information of a very healthy dietary practice, because it starts with you. Athletes come to you, they start their career with you, probably they train with you for 1 year, 2 years, 3 years, 7 years, and then they slowly graduate and move on to other coaches based on the facilities available. So you are very crucial people, important people in their lives, who will give them really healthy environment, not only environment but also health in terms of food. So until and unless you know it is important, you will not be able to guide them properly for a healthy lifestyle. And it is with you it starts. आपके साथ ही वो शुरू होती है। इसीलिए ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को अच्छे खाना सजेस्ट करें। तो खाना कैसे होनी चाहिए, हम बेसिकली अगर कहेंगे खाना बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर जो भी डाइट हम कहते हैं हेल्दी डाइट है, वो हेल्दी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। मैं खिलाड़ी हूँ, सिर्फ मैं प्रोटीन खाऊंगा नहीं चलेगी, हमें सारी चीजें खानी चाहिए ताकि हमें एनर्जी मिले, प्रोटीन मिले, विटामिन्स मिले, मिनरल्स मिले। ये सारी चीजें हमें खाने से ही पूर्ति कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें अदर चीजें जरूरत पड़ेगी, हम खाने से ही सारी चीजें हम भरपाई कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस अच्छा खाना खाना पड़ेगा। साथ के साथ हम ऐसे माहौल में हैं इंडिया में कि हमारे आदतें अलग हैं, हम किस जगह से बिलोंग करते हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हर जगह का अपना अपना रीजन का अपना अपना खुद का चीजें उगने का, मिलने का, एंड उस हिसाब से खाना जो बनती है एंड हम खाते हैं, आदतें उससे बनते हैं। साथ के साथ हमारा रिलीजन, हमारा कस्टम, ये सारी चीजें भी जुड़ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इंडिया में कोई पोर्क खाता है, कोई नहीं खाता, कोई बीफ खाता है, कोई नहीं खाता, कोई चिकन खाता है, कोई नहीं खाता, कोई बिल्कुल ही नॉनवेज ही नहीं खाता है। सो हम ऐसे देश में हैं जहां पे हमारा कल्चर अलग है, आदतें अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, हमें कस्टम्स अलग है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी आदतें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड स्पेशली डाइट एक ऐसा चीज है जो बिल्कुल हमें रेस्पेक्ट के साथ किसी को हमें एडवाइस करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें माइंड में रख के मैं क्या कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। Before that, I'll speak in English for those who don't understand. What I'm trying to say here is, since you are very few people who have to inculcate a very healthy dietary practice of the athlete at a very early age, because they come to you at a very early age, it is important that you recommend a healthy diet. And a healthy diet which is balanced will provide all the nutrients, including carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals,
if we understand that it can be consumed in the diet itself. But what we also have to do is, people come from different religions, different places, different customs, different eating habits and choices. So we have to respect them according to their choices, habits, customs, and religion. Give respect to whatever they have and then accordingly advise. And it's really very important. We cannot advise however we wish to. Is my screen moving? मेरा स्क्रीन मूव हो रहा है अभी. न्यूट्रिएंट डेंसिटी का आ रहा है. कैन गिव मी थम्स अप कोई? क्या मेरा स्क्रीन मूव हो रहा है? यस, ओके, थैंक यू. न्यूट्रिएंट डेंसिटी की बात क्यों कर रही हूं मैं? न्यूट्रिएंट डेंसिटी यानी कि हम एथलीट्स जो हैं उनके आम इंसान के कंपैरिजन में खाने का जो मात्रा जो है वो ज्यादा चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, इसीलिए उनकी क्वालिटी भी बढ़िया रखना पड़ेगा. सो जब मैं न्यूट्रिएंट डेंसिटी के जिक्र कर रही हूँ, हमें 3 चीजें को ध्यान में रखना पड़ेगा. वो है क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइमिंग. क्योंकि ये 3 चीजें हैं जो खाने को स्पेशल बनाती है. स्पेशल इन द सेंस जो एक एथलीट को जरूरत है उस चीजों को वो कर पाएगी. सो क्वांटिटी ऑफ द फूड एथलीट के लिए ज्यादा जरूरी पड़ेगी. इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो क्वांटिटी जो है हमें वाइजली चूज करना पड़ेगा ताकि हमारा क्वालिटी बढ़िया रहे और खाना वो थोड़ी सी कम मात्रा में खा पाए. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान जो डेस्क जॉब करते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, तो हमारा कैलोरीज इतना खर्च नहीं होता. तो लगभग मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल 1500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक एथलीट को शायद 450 4500 सो 4500 या 6000 कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी. क्या मेरा क्वांटिटी कम रहेगा, उनकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, बट इतना खाना खाने से बेटर है कि वो इतना अच्छा क्वालिटी चूज करे कि काफी चीजों को, न्यूट्रिशन को वो एक ही चीज में पूर्ति कर पाए. तो ऐसे चीजों हम कहते हैं न्यूट्रिएंट डेंस फूड. न्यूट्रिएंट डेंस फूड जिसमें आप चूज कर सकते हैं. नाउ फॉर दोज इन इंग्लिश, what we are trying to understand is, we are talking about nutrient density. Nutrient density means athletes have larger requirements of energy and this must be consumed through food alone. For example, a sedentary person like me may require 1500 calories, but athletes may require 4500 to 6000 calories and beyond. So if this is the requirement, they need to eat more. But if we keep the quality very high, what will happen? The amount of food that they eat can be reduced, but they will get the same amount of calories, they will get the same amount of nutrients. So doing this is called nutrient density. That is how you choose healthy food for athlete. ऐसे ही हम healthy choose करते हैं. In addition to this, what happens is, the timing at which each of the food is consumed is important because it improves digestion and therefore increases the quality of the food, right? So I will share on your screen one picture to give you an example. Generally, I am not against biscuits. That is not the concept I'm trying to say, but I'm just going to compare 2 different things. One, what happens is athletes generally, what I've observed is, they like to eat biscuits. They are addicted to it. Most athletes, during snacks, evening, they want chai biscuit. If I don't give them biscuits, they will say, "Ma'am, aap अच्छे खिलाते नहीं हो." Right? But I'll explain to you how you have to, how I convince. I'm helping you convince your athletes. I'm not saying biscuits are bad. I'm saying we have to choose them wisely because I'll give you the advantages of biscuits. Biscuits have is a good source of carbohydrate. They will release the energy slowly, which will help them to
do their training sessions across, because the release of glucose is slow because of the fiber content and the carbohydrate content in the food. But on the other hand, the processing in which this occurs is with the use of either dalda or margarine, which are unhealthy food, unhealthy substances. On the other hand, you can give them healthy choices with good nutrient density. These, for example, contain, for example, grapes and strawberries. They are rich in calories. They will give you enough calories to complete a session. They are rich in vitamins. They are rich in minerals. At the same time, they have antioxidants also, so they are healthy. हिंदी में अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट डेंसिटी की, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अधिकतर बच्चे क्या पसंद करते हैं, बिस्किट्स खा के ट्रेनिंग्स पे जाते हैं और उनको पसंद भी है। काफी बच्चे बिस्किट्स खाना पसंद करते हैं, उनको लगता है बिस्किट्स खा के मैं ट्रेनिंग कर लूंगा, अच्छा रहता है। ट्रू, बिस्किट्स खा के ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि बिस्किट्स में एडवांटेज ये है कि वो स्लो रिलीज करती है एनर्जी को, ताकि वो ट्रेनिंग सेशन लगभग अच्छे तरीके से पूरी कर पाए। लेकिन इसमें नेगेटिव ये है कि ये अधिकतर मैदे से बनती है। दूसरी चीज है कि इसमें अनहेल्दी फैट जैसे डालडा और मार्जरीन डलती है ताकि वो फ्लेवर एंड वो टेक्सचर आए, तो ये अनहेल्दी चीजें होती हैं। तो बच्चे तो ट्रांसफैट भी होते हैं, बच्चे ये सारी चीजें सोचते नहीं, उनको ये लगता है कि हाँ मुझे भूख लग रहा है, मुझे एक बिस्किट खा लेता हूँ तो मैं अपना ट्रेनिंग सेशंस पूरी कर पाता हूँ, कुछ तो पेट में जाना है। बट इसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव ये है कि इसमें क्या है, सिर्फ एनर्जी है क्योंकि फैट से बनती है, कार्बोहाइड्रेट से। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑल्टरनेटिवली आप सोचते हैं कि फ्रूट्स खाएं, एग्जाम्पल के तौर पे फ्रूट्स में एनर्जी के साथ साथ इसमें विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं जो हमें चाहिए होती है एथलीट के लिए। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको न्यूट्रिएंट, ये कैलोरी डेंस है, इसको हम कहते हैं कैलोरी डेंस क्योंकि इसमें काफी कैलोरीज होती है, लेकिन इसमें काफी न्यूट्रिशन नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। पंकज सिंह, आप बार बार स्क्रीन का रिमोट कंट्रोल मांग रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख रहे हैं फ्रूट्स जो हालांकि हेल्दी होती है, साथ के साथ न्यूट्रिशन भी देती है, हेल्दी न्यूट्रिएंट होती है। सो हमें बच्चों की जब हम डिस्कस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं, हमें ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ये आज का क्लास है ऐसे। तो हम इस कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे आगे, जैसे सीरियल्स यानी कि अनाज, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सारी चीजों को अनाज कहते हैं। ठीक है, सीरियल यानी कि अनाज, पल्सेस एंड लेग्यूम्स यानी कि दाल, सोया, इस सब को हम पल्सेस एंड लेग्यूम्स कहते हैं। बीन्स, जैसे बीन्स हो गए, पल्सेस हो गए, लेग्यूम्स, इस सबको पल्सेस एंड लेग्यूम्स कहते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप जानते हो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप जानते हैं, एग्स जानते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड में फिश, चिकन, मटन। नट्स में जितने भी नट्स एंड ऑयल सीड्स क्लासिफिकेशन आप जानते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, शुगर्स एंड बेवरेजेस। बेवरेजेस यानी कि जो भी मीठा फ्लूइड, इसको बेवरेजेस कहते हैं। सो ये बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं। इसके क्लासिफिकेशन अंदर जाके देखते हैं हर चीज में क्या एक हेल्दी फूड हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट। सो आपके स्क्रीन में आप अभी फिलहाल देख रहे हैं, इज स्क्रीन मूविंग? फूड चॉइसेस, सीरियल्स एंड पल्सेस दिखना चाहिए आपके स्क्रीन के ऊपर। कैन समबडी गिव मी अ थम्स अप अगर आप ये स्क्रीन दिख रहा है आपके सामने? फूड चॉइसेस, सीरियल्स एंड पल्सेस। नहीं दिख रहा है, ओके।
I will reshare. क्या अब दिख रहा है आपको? ओके, डन, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम आज देख रहे हैं सीरियल्स एंड पल्सेस, यानी अनाज और दाल के अंडर क्या बेटर ऑप्शंस, हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप अपने एथलीट्स को रिकमेंड कर सकते हैं। पहली चीज है मैदे के प्रोडक्ट्स, व्हाइट ब्रेड, इंडिया में जो पास्ता मिलती है वो, रिफाइंड बासमती, रिफाइंड राइस हो, बासमती राइस हो, जो भी हो, फ्राइड स्नैक्स, पैक्ड प्रोसेस प्रोडक्ट्स, स्प्लिट दाल, ये हमारी जो हम नॉर्मल आम तौर पे हम खाते हैं, बच्चे खाते हैं। लेकिन हम एक हेल्दी सजेशन बच्चों को दे सकते हैं इसी की कैटेगरी के अंडर। उसमें से जो न्यूट्रिएंट डेंस की कैटेगरी होगी, मैदा के प्रोडक्ट, सुबह सुबह बच्चे क्या खाएंगे, ब्रेड खा के आएंगे, या आजकल तो कुलचे भी गरम गरम सेक के दे देते हैं, है ना, कुलचे हो या ब्रेड्स हो, ये मैदे से बनते हैं। इससे बेटर ऑप्शन है कि बच्चों को हम सजेस्ट करें कि दलिया, अगर ये नॉर्थ में है, या अगर साउथ इंडियंस हैं या साउथ में जो लोग खा सकते हैं, इडली, डोसा, पोंगल, उपमा, ये मिक्स्ड वेजिटेबल उपमा, ये सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जो आप ब्रेकफास्ट के तौर पे आप दे सकते हैं। हालांकि आपको अवॉइड करनी चाहिए मैदे की प्रोडक्ट्स जो ब्रेकफास्ट में जाएंगे, राइट। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैडम हम इतना बच्चों का नहीं कह सकते उनकी, क्योंकि इतनी जिस जगह से आते हैं उनका मम्मा उनको सुबह सुबह उठ के खाना नहीं बनाती, अगर ऐसे माहौल है तो बच्चों को वहां पे आसपास जो मिलती है उसी से खा के आना है ट्रेनिंग के लिए, देन अगर व्हाइट ब्रेड की जगह पे आपको सजेस्ट करना चाहिए होल व्हीट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड। इसके साथ साथ आपको ये भी बोलना चाहिए कि ब्राउन ब्रेड मत, ब्राउन ब्रेड खाएं या व्हाइट ब्रेड खाएं, दोनों एक ही हैं, क्योंकि ब्राउन ब्रेड में, ब्रेड के साथ साथ ब्रेड में क्या करते हैं, वो ब्राउन चॉकलेट फ्लेवर का कलर ऐड करते हैं ताकि वो ब्राउन दिखे, वो व्हीट ब्रेड नहीं है। तो आपको सजेस्ट करना चाहिए व्हीट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, या अगर ऐसा नहीं है, बेटर ऑप्शन है कि बच्चों को पास ब्रेड की जरूरत नहीं है, रोटी सब्जी खा के आ सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह इतना इस ठंड में नहीं, इतना सुबह ठंड में नहीं हो पाता। बट अगर उनके पास 3 घंटे की फासला है ट्रेनिंग आपके पास पहुंचने के लिए, देन दे कैन गो फॉर दिस। तो ऐसे आपको ऑप्शंस चूज करनी चाहिए। यस, रिफाइंड बासमती राइस ही मिलती है, ब्राउन राइस अनप्रोसेस राइस बहुत महंगा पड़ता है, अंडरस्टूड, लेकिन हेल्थियर चॉइस तो अनप्रोसेस ब्राउन राइस है। जो जहां जहां आपके एथलीट्स या आपके घरों में खुद की चावल या गेहूं उगती है, तो आपको ये कि एटलीस्ट गेहूं का तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां चावल उगता है आपको ये करना है कि आप थोड़े मात्रा में, जितना आपको घर का रिक्वायरमेंट है उतना चावल आप घर में रखें, उसको कम मिलिंग के लिए दें, कोशिश करें कि जितना वो ब्राउन राइस की तरह ही रखें, सिर्फ एंड सिर्फ उसको ऊपर जो चोकर होती है हल्की सी, वो निकाल के आप घर में यूज कर सकते हैं। ये अच्छा सजेशन होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे गांव से आते हैं, तो ये वाला थोड़ी सी फीसिबल रहेगी उनके लिए। फ्राइड स्नैक्स डेफिनेटली अधिकतर नहीं हम रेकमेंड करते हैं, बेक स्नैक्स ही रेकमेंड करेंगे अगर बच्चों को कोई किसी को खाना है। जैसे अभी तो समोसा, ब्रेड पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, बज्जी, पकोड़े, तो मौसम भी है अभी फिलहाल, एंड बच्चे भी लगता है कि हम ट्रेनिंग के बाद ये खा के आए, बट दीज आर थिंग्स दैट दे कैन अवॉइड। मैं ये कह रही हूँ जिंदगी में कभी नहीं खाना है, वैसा नहीं है, वो कोशिश करना चाहिए कि ये सारी चीजें वो कम खाएं, क्योंकि ये इसमें कैलोरी तो ज्यादा मिलेगा बट उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी उससे। एंड देन प्रोसेस प्रोडक्ट्स है, अनप्रोसेस प्रोडक्ट्स, कई लोग जो हैं, अभी तो काफी चल रहा है मैगी,
प्रोसेस्ड है। मैगी तो छोड़ दीजिए, ओट्स भी मसाला ओट्स प्रोसेस्ड है, वो भी छोड़ दीजिए। अगर इस दोनों को भी मैं छोड़ दूं, आजकल ये जमाना है कि लोग मिक्सेस लेते हैं। मुझे डोसा बनाना या नहीं आता तो मैं डोसा का एमटीआर का पैकेट ले आती हूँ, एंड देन मैं उसको डोसा बना रही हूँ, इडली बना रही हूँ। तो पैकेट से जो प्रोसेस्ड शेल्फ लाइफ से प्रिजर्वेटिव से बन के आते हैं, वैसे सारे चीजों को हमें अवॉइड करनी चाहिए। एंड कोशिश करना कि अधिकतर एथलीट्स जो दाल है वो स्प्राउट्स के तरह से खाएं, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं यानी अंकुरित करते हैं, अंकुरित करने की वजह से जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है दाल की वो इंप्रूव हो जाएगा। साथ के साथ जो बी विटामिन है जो दाल में कमी होती है वो इंप्रूव हो जाती है। सो स्प्राउटिंग की वजह से फायदा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अगर वैसा भी नहीं है, धुली दाल से बेहतर है कि वो पूरे छिलके वाली दाल खाएं। अगर वैसा भी नहीं हो पाता, देन कोशिश करना चाहिए कि ये एक धुली दाल से बेटर है कि वो 2-3 दाल मिक्स करके खाएं, ताकि वो क्वालिटी बढ़ जाए। So for those in English, I will try to explain this. What we are trying to here learn is that these are foods that are consumed regularly by everybody. It is not that these are cursed foods. It doesn't mean you should never consume these. But what we are trying to see is, because the athletes require more nutrition, we should suggest them, recommend them which are healthy for them and have more nutrition. So on this part of your screen, you have the healthier options. Instead of maida products, for example, you can advise them to consume dalia. Or if they come from a South Indian belt, South Indian breakfast items are really very healthy, like idlis, dosas, because they are complete proteins. Pongal, there are many varieties that are available, so you can choose from those for athletes to consume for breakfast. Similarly, you should discourage athletes to consume white breads and pastas, but instead, if at all they want to eat pastas, they can eat wheat pastas, no doubt. Wheat pastas are healthy, but not white pastas, which are made up of maida. Similarly, what also you have to encourage your athletes is that if they are not having facility at home, where the parents do not provide food, healthier versions, for various constraints, their family restrictions, family issues, you can advise them to go for food which is convenient, but the most convenient form is to eat a bread. So if it is a bread, then you should advise them to choose whole wheat bread or multigrain bread instead of plain white bread. Reason being, the whole wheat breads have more nutrition than the white breads. One more thing you have to also suggest them is, do not consume the brown breads. They can have brown breads and white breads are the same. They're made of maida. The difference is between a white bread and a brown bread is that brown breads are colored. They are not wheat breads. They are not nutritionally rich. They are just colored breads because brown color is added to the bread. So what I'm trying to say is, try and advise your athletes to consume which is a healthier option to the alternative choices that are healthier, so that they consume at least a healthy source of food in the constraint that they are in. Yes, refined rice and basmati rice are consumed quite often. Instead, what you can suggest is, most often our athletes come from an urban belt, not from an urban belt, they come from a rural belt. So you can suggest them to consume food or rice which is unprocessed or brown rice. Yes, unprocessed brown rice are very expensive. Instead, what you can tell them is, advise them and recommend them is that, ask them to take a portion of the rice that is cultivated in their land and keep it to them. Let the rice undergo very minimal processing by just removing only the husk of the rice and then be consumed. That would be a better alternative, healthier alternative that we can suggest and recommend to our athletes.
Definitely no fried snacks, because with the winters coming in, it's nice to consume all the fried stuff, hot fried stuff. It's nice and tasty, but they have a lot of calories in them, but it is not a healthy way of consuming. Instead, you can ask them to consume anything which is baked products. At the same time, what also we need to remember is packed processed foods, like how we have Maggi's and the masala oats, Knorr soups. I'm just giving a brands. I'm not against any company. This is for only explanation and to help you understand. Or you have NTR mixes. So these must be discouraged. Try and as far as possible to encourage your athletes to consume readily prepared, not the readily prepared foods, but foods that are prepared through the normal processing. And when it comes to dal, advise your athletes to consume dal majorly in the form of sprouts, and if it is not in the form of sprouts, as whole dal. And even if it is not whole dal, then they have whole pulses. They must consume dal even if it is a split one without no husk, no cover on it. Advise them to mix more than one pulse, like they can mix urad with chana, they can mix moong with chana, more than one. Like mixture of dals must be consumed in one go so that it is more healthier for them. So next we will go to milk and milk products. Milk and milk products, is the screen visible with the milk and milk products? क्या मेरा स्क्रीन, आपके स्क्रीन में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं? फूड चॉइसेस नो? क्या हो रहा है? ओके, चलिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में अधिकतर क्या होता है, पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट, लाइक हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ से जितने भी एथलीट्स आते हैं, कोचेस आते हैं, वो फुल क्रीम मिल्क चाहिए ही चाहिए, राइट? बट this is not really very advisable given the amount of saturated fat that goes into this. जैसे प्रोसेस चीज है, पनीर, कर्ड, डेजर्ट्स हैं जो फुल क्रीम मिल्क से बनती हैं, खोया, आइसक्रीम्स, ये सारी चीजें हैं जो हम उसको ऑल्टरनेटिव सजेशंस हम दे सकते हैं जो हेल्दी हैं। जितने भी बच्चे हैं जो फुल क्रीम मिल्क पसंद करते हैं, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ काफी बच्चे ये कहते हैं कि मैम दूध तो फुल क्रीम ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। यस, डेफिनेटली फुल क्रीम मिल्क डेफिनेटली टेस्टी है, उससे जो दही बनती है, पनीर बनती है, खोया बनता है, बढ़िया होता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। बट एथलीट्स कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसे टेस्ट डेवलप करना चाहिए ताकि हम उस चीजों को आदत से खा लें। I'll give you one example. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप एक फॉरेनर को हमारे जैसे एक चटपटा एकदम मसाले के साथ तीखा खाना खाने के लिए बोलेंगे, क्या खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनको बचपन से ही आदत नहीं। हमें आदत है, इसीलिए हमें अच्छा लगता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे ही कोई भी चीज आदत डलती है, right? What I'm trying to say is, if there is any we go abroad or if we have any Europeans, for example, as friends, relatives, we find that they are not able to consume a proper Indian food because they find it very spicy and hot. But the same food is not spicy and hot for us because we are habituated to it. So taste is basically a habit. We should advise our athletes and keep telling them this, that it is a habit and they have to develop this habit. Right? Taste is a habit that needs to be developed. So you should encourage your athletes to develop a taste for healthier ones, of which consuming a double toned or
skim milk would be a better option because it will contain all nutrients except very little amount of fat. प्रोसेस चीज अगर लगती है किसी को, उससे बेटर है कि जितने भी आप मलाई निकालते हैं, खोया बनाते हैं, तो उससे बेटर है कि आप दूध से यूज करें। बट दूध रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो ऊपर मलाई जम जाती है। मलाई निकालने के बाद जितने भी आप यूज करेंगे पनीर बनाने में, दही बनाने में, लस्सी बनाने में, ये सारी चीजों को हम मलाई निकालने के बाद करेंगे, देन हेल्दी ऑप्शंस रहेंगे। हाँ, आइसक्रीम, मैम क्या बोल रही हो, आइसक्रीम के बराबर लस्सी कर दिया? डेफिनेटली नहीं, लस्सी तो बिल्कुल आइसक्रीम के बराबर नहीं है। आइसक्रीम आइसक्रीम है, लस्सी लस्सी है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। बट अगर हमारे पास कोई भी मीठा खाने का मन कर रहा है एंड वो भी दूध का, मिल्क बेस्ड है, दूध से बनी हुई है, देन हमें सजेस्ट करना चाहिए कि आइसक्रीम की जगह पे आप लस्सी, जहाँ पे थोड़े से शायद आप हल्का सा ज्यादा चीनी डाल के खाएं, इतना ऑप्शन तो दे सकते हैं। बट कोशिश करना चाहिए कि बच्चे आइसक्रीम्स कम खाएं, राइट? What we have tried to see in this particular slide is healthier alternatives to the most common consumed food in the milk and milk product section. Generally people, it is important that everybody drinks milk because milk is a good source of calcium and it is a precursor to vitamin D. So it is important that we drink definitely calcium. I'm not saying we should not drink calcium, but instead of the high calorie, low nutrient options, we can go for nutrient dense options. For example, in the case of full fat cow, buffalo or packed milks, we can go for skimmed, double toned or toned milk because it will contain all the nutrients of full cream milk minus fat. Similarly, when you're talking about the processed cheese, paneer, curd and desserts, it is advisable to consume the cream that is removed after refrigeration. You can ask people to refrigerate, remove the cream and then consume it in any whichever form that is required. The next slide on your screen is fruits and vegetables. Hope it is visible. Fruits and vegetables. So under fruits and vegetables, what we will look for is generally athletes. I've seen a number of athletes consuming Tetra Paks of fruit juices, which are packed fruit juices, packed soups. Oh, not able to see. दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया? आप लोगों को क्यों दिखाई दे रहा है? I don't understand. Fruits and vegetables. Okay. चलिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमने एग्जांपल से अधिकतर जितने बच्चे खिलाड़ी जनरली ऑन कॉमन लेवल लेते हैं उसी का एग्जांपल्स मैंने उठाया है। जैसे स्वीटन फ्रूट जूसेस हैं, पैक्ड फ्रूट्स हैं, टेट्रा पैक्स हैं, ओआरएस हैं, ऐसे पता नहीं कितनी दुनिया भर की ब्रांड्स आते हैं, कितनी कंपनियां अपने अपनी जगह पे बेचते हैं, वो सारे बच्चे पसंद करके फैंसी तौर पे पीते हैं, ये सोच के अधिकतर बच्चे कि इसमें सच में फ्रूट जूस होती है। बट सच्चाई यही है कि फ्रूट जूसेस नहीं होते। ये जो पैक्ड टेट्रा पैक्स मिलते हैं वो शुगर्ड वाटर है जिसमें फ्लेवर डाला जाता है फ्रूट्स की। मोस्टली, मैं ये नहीं कह रही हर कोई, अधिकतर ऐसे ही होता है क्योंकि फ्रूट ज्यादा देर नहीं रह पाती। अगर ऐसा भी नहीं है तो प्रिजर्वेटिव्स डालना पड़ेगा। अगर आप मान के चलते हैं आप भी घर में अगर फ्रूट जूस निकालते हैं कितना देर रहेगा? 1 घंटा 2 घंटा मुश्किल से, इससे ज्यादा नहीं रह पाती, उसके बाद खराब होने लगती है। तो महीने 1 साल 8 महीने 10 महीने कैसे टेट्रा पैक्स में रह जाते हैं? सिंपल सी बात है, वो फ्रूट जूस तो है ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर है भी है तो इतनी ढेर सारे प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं कि वो हेल्दी नहीं होते। सो हमें फ्रूट जूस की जगह पे कोशिश करना चाहिए होल फ्रूट खा लें। अगर मन करता है कि नहीं मुझे फ्रूट जूस ही पीनी है, देन फ्रेश फ्रूट जूस पीना चाहिए।
पैक्ड सूप्स में कोशिश करना चाहिए कि होममेड सूप ले। होममेड सूप जैसे हमने दाल पकाया, पानी बच जाता है, उससे सूप बना सकते हैं। सब्जियां उबाला, पानी बच जाता है, बचा के उससे सूप बना सकते हैं। नॉन वेज पकाया, पानी बचा के उससे सूप बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही हेल्दी ऑप्शंस है, क्योंकि आपका जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो पूरी की पूरी मिल जाएंगे, कमी नहीं रहेगा। राइट, थोड़ी सी मेहनत होगा, बट ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर हमें हेल्दी चॉइसेस चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे पैक्ड सूप्स में ये न्यूट्रिशन नहीं मिलता। फ्राइड वेजिटेबल्स, हाँ बच्चे जो हैं, मैम मुझे भिंडी फ्राई पसंद है, आलू फ्राई पसंद है। सो सारे जितने भी आप बच्चों को पूछिए कि क्या पसंद है, वो सिर्फ फ्राइड आइटम्स ही बताएंगे। कभी कभार चल जाएगा, बट आपको बच्चों को ये कहना चाहिए कि कभी कभी खा लीजिएगा, बट कोशिश कीजिए कि आप उसको एक करी के तौर पे, जहां पे आप लेस ऑयल यूज करते हैं वैसे। फिर भी अगर नहीं उनको फ्राइड टेक्सचर ही चाहिए, वैसे ही फॉर्म चाहिए, तो हमें ये सजेस्ट करना चाहिए कि वो पहले स्टीम करें या बॉईल करें, देन उसके बाद वो फ्राई करेंगे, देन वो कम टाइम पे फ्राई हो जाएगा, कम ऑयल पे, तो वही टेक्सचर वही आएगी। हाँ, मैं ऑप्शंस जो बता रही हूँ आपका वो हेल्थियर ऑप्शंस है, बट थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो ये चीजें आपको एनकरेज करना जरूरी है। काफी जगह मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वेजिटेबल काट के पहले ही रख देते हैं। मैंने आज शाम को वेजिटेबल्स काट के रख दिया, मैं कल सुबह बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलता सुबह उठ के वेजिटेबल्स काटने का। काफी लोग होते हैं, काफी लोग मैंने देखा है। हमारे पास काफी चीजों की एक्सक्यूजेस होती है, बट अगर हमें सच में न्यूट्रिशन चाहिए तो ये अवॉइड करनी चाहिए। सिंपल रीजन ये है कि जब हम वेजिटेबल्स को काट के रखते हैं, देन ऑक्सीडेशन होता है, एंड जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो काटने की वजह से गायब हो जाते हैं। तो फायदा ही नहीं है हमें। जो मेजरली क्यों वेजिटेबल्स हम फ्रूट्स खाते हैं, विटामिन्स के लिए है ना, बट वो मिलती ही नहीं। अगर हम ऐसे तरीके अपनाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसी चीजें ना करें, एंड ऑफ कोर्स कम ऑयल से तो करना ही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नॉन वेजिटेरियन। क्या नॉन वेजिटेरियन आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? नॉन वेजिटेरियन क्या स्क्रीन पे दिख रहा है? यस और नो? अ थम्स अप प्लीज। आई थिंक somebody should respond। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? क्या है? ओ, दिखाई दे रहा है किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात है? नॉन वेज दिखना चाहिए आप लोगों को? ओ, क्या कुछ भी। I think I'll do this every screen। चलिए, नॉन वेजिटेरियन में हमने सिर्फ 3 क्लासिफिकेशंस देखे हैं, ब्रॉडली, फिश, चिकन एंड रेड मीट। अगर हम तीनों देखें, 3 आर गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, नो डाउट। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज गुड, नो डाउट, बट हर फूड में अपना एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो अगर फिश खाते हैं, एडवांटेज ये है कि इट इज अ गुड क्वालिटी प्रोटीन, बट डिसएडवांटेज ये है कि इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स थोड़ी सी कम मिलेंगे कंपेयर टू चिकन एंड मटन, रेड मीट। इसमें जो फैट जो है वो गुड, बिकॉज इसमें ओमेगा 3 होती है, विच इज अ गुड फैट। बाकी कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड में ओमेगा 3 नहीं रहता एंड हेल्दी फैट नहीं रहता है। बाकी सारे नॉन वेजिटेरियन फूड में फैट अनहेल्दी होती है, सिवाय फिश को छोड़ के। राइट, सो ये है, आपको अगर सजेस्ट करनी है, आपके जहां फिश ईटिंग बेल्ट है, फिश खा सकते हैं बच्चे। जितने भी कोस्टल एरिया के लोग हैं वो सारे फिश ईटर्स होते हैं, तो आप लोगों को अच्छा ऑप्शन है। सो वी शुड एनकरेज मोर फिश कंजम्पशन, क्योंकि गुड क्वालिटी प्रोटीन, गुड ओमेगा 3
बट थोड़ी सी विटामिन्स मिनरल्स की कमी होगी, बट इस वील हैव टू मैनेज इट विद अदर सोर्सेस। ये हो गया फिश के बारे में। नेक्स्ट कम्स चिकन। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट चिकन, chicken is a good source of protein. The quality of protein is good, but the fat is unhealthy fat. चिकन के ऊपर फैट रहता है, अगर चिकन खाने वाले हैं तो आप जानते होंगे चिकन के ऊपर फैट रहता है, दैट वाइट पोर्शन, ये अनहेल्दी होती है, नंबर 1। नंबर 2, काफी बच्चे क्या है, लेग पीस पसंद करते हैं। चिकन बोलते ही लेग पीस ही याद आता है, बाकी हम देख के बच्चे पसंद नहीं करेंगे, बट आप ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, लेग के साथ बोनस में आपको फैट भी मिलती है, एंड वो फैट जो है वो अनहेल्दी है, राइट। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। चिकन जब चूज कर रहे हैं याद रखना पड़ेगा, तो प्रोटीन अच्छी है, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, लेकिन फैट है, थोड़ी मात्रा में है फैट, बट थोड़ा मात्रा भी वो अनहेल्दी है। ये पूरे चिकन की बॉडी पार्ट्स में से लेग्स में ज्यादा होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए लेग्स हम बच्चों को, एथलीट्स को ना खिलाएं। हो गया। बट बच्चों को हम लेग्स नहीं खिलाते हैं तो कहते हैं कि क्या खिलाया, अच्छा चिकन नहीं खिला रहे, क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप नाउ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एजुकेट करें बच्चों को, राइट। एडवांटेज ये है इसके साथ, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन के साथ, कि जो इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, इसमें हमें गुड अमाउंट मिलेंगे, स्पेशली इन लिवर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एथलीट को आयरन डिफिशियंसी है, फीमेल एथलीट्स हैं आपके पास, देन यू कैन एनकरेज देम टू कंज्यूम लिवर, स्प्लीन चिकन की। ये कहानी हो गया चिकन के बारे में। देन वी विल गो टू रेड मीट। रेड मीट में द प्रोटीन इज गुड, अमाउंट भी अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ज्यादा फैट रहेगा, एंड ये सारा फैट जो है एकदम अनहेल्दी है, एकदम अनहेल्दी फैट है। कोशिश करना चाहिए कि आप लीन मीट डिसाइड करें, चूज करें, तो बच्चों को कहना चाहिए कि फैट के बगैर जो भी फैट मटन मिलती है वो खाना चाहिए। जब मैं रेड मीट की जिक्र कर रही हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, रेड मीट जब भी हम कह रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम लैम्ब, गोट यानी बकरी, बैर बकरी, बीफ, पोर्क, आपकी जो भी आप अलाउड है आपके कस्टम के बेसिस पे, जो आपको आप बच्चे खा सकते हैं, वो एडवाइस करेंगे, क्योंकि हम वी आर अ डाइवर्स इंडिया, हर जगह में वी हैव अपने अपने कस्टम्स एंड कल्चर्स हैं, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, एंड जो जिनको आता है उसके हिसाब से हमें रिकमेंडेशन देनी चाहिए। एडवांटेजेस, इट इज अ गुड क्वालिटी प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, साथ के साथ इसमें ढेर सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन। ओके, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड के लिए मैं बार बार स्टॉप शेयर करना पड़ रहा है, आई विल रीशेयर, क्योंकि आप लोगों को वो नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट चलते हैं नट्स एंड ऑयल सीड्स पे। नट्स एंड ऑयल सीड्स पे सारे नट्स एंड ऑयल्स सीड्स अच्छे हैं, तो एथलीट्स के लिए हम हर कुछ रेकमेंड कर सकते हैं, बट कोशिश करना चाहिए कि जो फ्राइड आती है ना नट्स, मार्केट में जो मिलती है पैकेट्स में, उसको अवॉइड करने के लिए बोलना चाहिए। अदरवाइज जितने भी नट्स एंड ऑयल सीड्स मार्केट में मिलते हैं, दे आर ऑल हेल्दी, बिकॉज दे कंटेन गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड a moderate amount of protein. Remember, जब nuts and oil seeds के बारे में जिक्र कर रहे हैं, what you need to remember is they are not very good source of protein. They are good source of protein. They are not very good source of protein, but they are very good source of minerals. Excellent source of minerals. But generally, what we think is they are good sources of protein. They are not two good sources of protein. Yes, protein is there, but it comes with a baggage of fat. प्रोटीन मॉडरेट अमाउंट में होती है, फैट बहुत ज्यादा होता है नट्स एंड ऑयल सीड्स में। सो हमें सोच समझ के ये कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कोई भी बोलते हैं, रेकमेंड करते हैं नट्स एंड ऑयल सीड्स, फैंसी हो गया आज के डेट में।
यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर रिकमेंडिंग। क्या बच्चों को चाहिए, कितना चाहिए, ये सोचना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट अगेन वी विल गो टू कन्फेक्शनरीज। आई विल रीशेयर योर स्क्रीन। काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है, सो आई विल कीप इट लाइक दिस। मैं ऐसे करके आपको क्लास कर देती हूँ सो दैट बार बार मैं स्लाइड शेयर करने में दिक्कत ना आए। ओके, नाउ शुगर्स एंड कन्फेक्शनरीज में बहुत कम बच्चे में मिल चुके हैं जो स्वीट नहीं पसंद करते हैं, भले वो चॉकलेट हो, मीठा, कोई भी मीठा चीज, कोई भी मीठा चीज बच्चों को मीठा पसंद होती है जनरली। तो जिनका मीठा अच्छी भी है, मैं माना नहीं कर रही हूँ बच्चे मीठा नहीं खाना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं, बच्चे मीठा खा सकते हैं क्योंकि दे गेट गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, माना नहीं है, बट थोड़ी अमाउंट के लिए खा सकते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल मीठा 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 नहीं, दे कैन कंज्यूम बट इन अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, दे कैन कंज्यूम बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो हम हेल्दियर ऑप्शंस देखते हैं मीठे का। अगर कोई भी बच्चा मीठा खाना पसंद करता है, देन वी शुड नॉट आस्क देम टू ड्रिंक कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यानी कि सोडा, पेप्सी, थम्स अप, ऐसे वाले बेवरेजेस की जगह पे आप यू शुड आस्क देम टू ड्रिंक फ्रेश फ्रूट जूसेस। चाहिए भले थोड़े से आप इसमें हनी या चीनी, गुड़, जो मर्जी है, थोड़े से हल्का ज्यादा कर दे ताकि वो मीठा जो है वो मीठा से उनको लगे, बट बहुत हल्का सा। तो ऐसे ऑप्शंस चूज करना चाहिए। जैसे उनको काफी मीठा पसंद करता है, जैसे बच्चों को तो जलेबी और गुलाब जामुन अभी तक मैंने टॉप लिस्ट देखा है बच्चों में, वो इतना बहुत हाई कैलोरी कंटेंट है, तो इसकी जगह पे उनको मीठा ही खाना पसंद है, देन वी हैव टू सजेस्ट समथिंग लाइक ड्राई स्वीट्स, ड्राई फ्रूट का स्वीट, जहां पे हम बिना चीनी और गुड़ के भी डेट्स के साथ मिक्स करके बनाने के लिए एडवाइस करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको मीठा मिल जाएगा जो बच्चों को पसंद है, साथ के साथ उनको लिमिटेड क्वांटिटी में वो मिठास आएगी, राइट। एंड ऑल्सो कार्बोनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स की जगह पे हमें एडवाइस करनी चाहिए स्पोर्ट्स ड्रिंक हो, फ्रेश फ्रूट जूस एडवाइस कर सकते हैं, या नींबू पानी रेकमेंड कर सकते हैं। These are good alternatives to energy drinks and carbonated beverages. इसके साथ साथ फिर भी बच्चों को कभी कभी लगता है कि नहीं मुझे पैकेज्ड ही खानी चाहिए, हम घर में खिलाएंगे बच्चों को पसंद नहीं आएगा, तो आपका एथलीट्स भी आप एडवाइस करेंगे एक बार दो बार वो खिलाएंगे, वहां घर में नहीं, वहां कुछ और नई कोच आप नहीं। Then you can ask to consume carbohydrate gels and jellies जो मिल जाती है, which especially for endurance sports, या आप ट्रेनिंग बहुत लंबे देर तक करवा रहे हैं 2 घंटे से ऊपर, then you can recommend such kind of sweet things, but ये थोड़े से महंगे मिलते हैं बट मिल जाते हैं मार्केट में। ओके, सो नेक्स्ट फैट्स एंड ऑयल्स। अनहेल्दी ऑप्शंस होंगे वनस्पति घी, कैस्टर ऑयल, कॉर्न ऑयल, इसकी जगह पे हम हेल्दी ऑप्शंस रहेंगी ग्राउंडनट, राइस ब्रैन, सेसेम, ऑलिव ऑयल, कैनल ऑयल, फिश ऑयल्स, फ्लैक्सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। बट ये है कि हमें जब भी हम ऑयल यूज कर रहे हैं याद रखिएगा कि ऑयल चेंज करनी चाहिए, एक ही ऑयल पूरे जिंदगी नहीं यूज करनी चाहिए। अगर आप इस महीने में एक तरह का ऑयल यूज करा तो दूसरे महीने में चेंज कर दीजिएगा, तीसरे महीने तीसरा एक और चेंज कर लीजिएगा। तो आपको मिक्स एंड मैच करना जरूरी है, क्योंकि हर ऑयल कंप्लीट नहीं है, हर ऑयल में बेनिफिट है, नुकसान है, अच्छा है, खराब है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें विल हैव टू मिक्स एंड मैच ऑयल्स। देन चलते हैं क्या डूज एंड डूज ऑफ हेल्दी। अभी तक हमने ऑल्टरनेटिव्स, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढा है जो हम अपने एथलीट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। सो फॉर व्हाट वी हैव सीन इज वी हैव सीन हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स दैट वी कैन सजेस्ट टू आवर एथलीट्स, also for people at home. So now we will look into the do's and don'ts, especially how the athlete should do. Okay, the first and foremost is they should include protein in all their meals. Breakfast, lunch and dinner should contain protein. अब आते हैं क्या एथलीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उनकी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जो 3 मेजर मील्स होती है, आपको एडवाइस करना चाहिए कि उसमें प्रोटीन का कोई भी एक चीज होनी चाहिए।
प्रोटीन सोर्सेस तो आप जानते हैं, तो मैं इसमें डिटेलिंग नहीं जा रही हूँ, बट आपको एडवाइस ये करनी चाहिए कि प्रोटीन का सोर्स हर मील में रहनी चाहिए, स्पेशली क्योंकि आपके पास जो बच्चे आते हैं वो तो ग्रोइंग एज के हैं, इनका रिक्वायरमेंट वैसे भी ज्यादा रहता है ग्रोइंग एज की वजह से, ऊपर से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, सो उनका जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ के आती है, बड़ा हुआ होता है, तो यू शुड encourage them to consume protein in all the meals, breakfast, lunch and dinner. ठीक है। नेक्स्ट आपको जो करना चाहिए वो है कि बच्चों को कहना चाहिए कि कोशिश करें वो हरे पत्ते की सब्जी खाएं, जैसे अब मौसम है, ढेर सारा हरे पत्ते की सब्जी मिलेगी, बट समर में मुश्किल हो जाएगा। इन विंटर्स इट इज इजियर टू गेट leafy vegetables. In summers, it is a little difficult. So, irrespective of summers or winters, you should encourage them. In winters, because the availability is more, you should advise them to eat at least one form, koi bhi form, whichever form they like, in any one time a day during winters. In summers, at least 2 times a week. हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा अवेलेबिलिटी जो होती है हरी पत्ते की सब्जी सीजन के बेसिस पे होती है, विंटर्स पे हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि कोई भी तरीके से, कोई भी फॉर्म में, भले वो रायते में डाल के, रोटी में डाल के, जैसे मेथी रोटी हो गया, या जैसे आप साग बना दिया, राइट, इन एनी फॉर्म, विंटर्स में एवरीडे, हर दिन, एंड समर्स में हफ्ते में 2 बार, ऐसे कोई भी फॉर्म पे कोई भी एक पत्ते की सब्जी इंक्लूड करना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एथलीट के लिए आपको हमेशा बोलना चाहिए कि वो खाना चबा के खाएं। मैम ये हम जानते हैं, बट करते कौन, कितने लोग हैं? आप बच्चों को इसीलिए, स्पेशली एथलीट्स को इसीलिए कहना चाहिए क्योंकि अधिकतर एथलीट्स को पेट खराब रहता है। आपने अगर बच्चों से बात करा, आप लगातार कोशिश कीजिए अपने ही खुद के एथलीट्स के साथ, आप वो तो हफ्ते में 1-2 बार तो पेट की खराबी बोलेंगे ही बोलेंगे। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो पेट की खराब नहीं है कहेंगे। काफी बच्चे को पेट की इश्यूज होती है, पेट दर्द है, उनको वो मोशन नहीं जा रहे हैं, पॉटी पे नहीं जा रहे हैं, 2 दिन में 1 बार आता है, 3 दिन में 1 बार आता है, काफी चीजें होती है उनके साथ, एसिडिटी है। तो पहली चीज एडवाइस ये होती है कि आप उनको कहना चाहिए कि खाना चबा के खाएं, ये शुरुआत है। In English, what we are I'm trying to tell you is, generally athletes have a weak stomach. They have issues right from constipation to stomach pain and very many issues. The athletes have a very poor gut. So we should start encouraging athletes to chew their food and eat properly, because it starts from there. A healthy gut starts from chewing the food and eat. So it improves the metabolism, it improves the digestion, because the saliva and the enzymes starting from the mouth to the stomach, they are everywhere and they will help in the digestion and absorption, right? एंड डाइजेशन को कैसे हम बूस्ट करना पड़ेगा? बूस्ट ऐसे करते हैं जैसे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज खाएं, कोशिश करें कि होल ग्रेन्स जिसके ऊपर छिलका हो वो खाएं, कुक यानी पका के खाएं। काफी लोग हैं जो सलाद तो हम काफी लोग रोज खाते हैं, सलाद करना भी अच्छी है, बट कुछ बच्चों को जिनको पेट खराब होती है उनको सलाद रेकमेंड नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी पेट खराब है देन सलाद नहीं रेकमेंड करना चाहिए, कोई भी खाना अच्छे से पका के खाना चाहिए। एंड कुछ लोग ऐसे होता है कि खाना बना दिया मैंने 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का बना के फ्रिज में रख दिया एंड देन मैं थोड़े थोड़े लेके गर्म करके खा रहा हूँ, ये भी थोड़े से इश्यूज हैं। एंड देन डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोबायोटिक, यानी कि हमारा नेचुरल जो प्रोबायोटिक है वो है दही। दही रोज खाना जरूरी है, ओके। एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली पानी तो पीना ही है। खाना पका के खाना इंपॉर्टेंट है,
एंड साथ के साथ यू शुड एनकरेज एथलीट्स टू ड्रिंक वाटर, एस्पेशली एथलीट्स. एवरीबडी नीड्स टू ड्रिंक वाटर, एस्पेशली एथलीट्स, बिकॉज दे स्वेट अ लॉट, दे लूज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू स्वेट. Therefore, advising them to consume more water at any point. If I say before, after waking up, before meal, after bath, before sleep, it's just to say that they should drink at any point of time whenever they are feeling thirst. There is no restriction of the time. They can drink at any time. हालांकि अभी जो मैं कहने की ये कोशिश कर रही हूँ, काफी लोग बोलते हैं कि आपको तब नहीं खाना है, सॉरी पीना चाहिए, आपको खाना खाने के बाद नहीं पीना चाहिए, खाना खाने से पहले पीना नहीं चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, खड़े होके नहीं पीना चाहिए, बैठ के नहीं पीना चाहिए. ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस आज की ट्रेंडिंग हो रही है. बट मैं सिर्फ इतना आपको ये सजेशन दूंगी कि आप बच्चों को बोले जब भी प्यास लगती है पानी, ये मिनिमम है. उसके लिए कोई वक्त नहीं रहता. आपको उठते ही प्यास लगता है, पानी पीजिए. खाना खाने के बाद प्यास लग रहा है, पानी पीजिए. खाने खाने से पहले प्यास लग रहा है, पानी पीजिए. सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि कम से कम आप अपना प्यास को बुझाएं, अच्छी तरीके से प्यास बुझा के रखें पानी पी के. सो सिर्फ पानी पीना है, ऐसे कुछ भी नहीं है. अगर फ्रूट सैलड है, फ्रूट्स एंड सैलड्स में भी खुद में पानी रहता है, तो फ्रूट की सैलड खाएंगे तब भी आपके शरीर में पानी चला जाता है. सूप्स पी सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं. ऐसे कोई भी फॉर्म ऑफ फ्लूइड आप ले सकते हैं ताकि आप हाइड्रेटेड रहें. रही बात डोंट्स की, यानी नो, नो की मात्रा में यस, कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल अपने बच्चों को ये सारी चीजें उनको एक तोहफे के तौर पे या कभी चीट मील के तौर पे हम सजेस्ट कर सकते हैं, बट नॉट ऑन ए डेली बेसिस. डेली नो. बच्चे पास के ठेले पे जाके समोसा, चाट, नूडल्स, चिप्स रोज के तौर पे नहीं. बच्चों का एज अ प्रॉब्लम में बहुत अच्छा करा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लली आप उनको एक चीट मील की तरह, चीट की तरह आप दे सकते हैं. मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं देना है, बट ये कह रहे हैं कि आपको ये डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि कब देना है. What I'm trying to say is these kind of foods that are on your screen, such as soft drinks, fast foods, should be given very rarely, probably as a cheat. And this cheat is not everyday cheat, because I know people, when I say cheat, they will consume at least one cheat meal every day. Then that is not cheat. Okay, so that must be carried out. So reasons क्यों है, हम क्यों एडवाइस कर रहे हैं एथलीट्स को अवॉइड करने के लिए, हमारे लिए भी, आम इंसान के लिए भी, बिकॉज इसमें एक्सेस शुगर कंटेंट होती है, वो भी इन द रिफाइंड फॉर्म. फैट हाई कंटेंट होती है, ढेर सारे प्रिजर्वेटिव्स डाल के रखते हैं, एंड जो फैट रहता है वो अनहेल्दी फैट होती है. हाई कंटेंट ऑफ सोडियम रहता है, एंड बहुत ही कम न्यूट्रिएंट वैल्यू रहती है, एंड ये डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के तरफ लेके जाती है, यानी हमारा ब्लड पिक्चर जो है वो खराब कर देती है. One more thing that you should advise your athletes is कि skip meals नहीं करना चाहिए. स्पेशली meals इसलिए skip नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि बच्चे कई जगह से आते हैं, कई कई हालातों में आते हैं. कभी उनको खाना मिलता है, नहीं मिलता है, खाना टाइम पे नहीं पहुंच पाती, वेरियस रीजंस, हम एग्जैक्टली नहीं पा. बहुत सारे बच्चे जो आपके पास आते हैं वो स्कूल गोइंग है, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, एंड देन ट्रेनिंग भी करते हैं, देन वो मिसमैच हो जाता है, ट्रैवल भी करना पड़ता है. तो इतनी सारी चीजों के साथ क्या होता है, अधिकतर बच्चे जो मैंने नोटिस करा, ऐसे हालातों में कोई भी एक मील, 2 मील स्किप कर जाते हैं, एंड उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाती. तो हमें सजेस्ट करनी चाहिए कि उनको मील्स तो बिल्कुल ही स्किप करना नहीं चाहिए. अगर ऐसे हालत पैदा हो जाती है कि उनको मील स्किप करना चाहिए, तो आपको सजेस्ट करना चाहिए ऐसे एग्जाम्पल्स के तौर पे, जैसे उनको कह दिया कि आप फ्रूट खाओ, स्मूदी खा लो, नट्स खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, उस टाइम पे इमरजेंसी के लिए, ताकि उनका जो पेट जो है खाली ना रहे, सोर्स ऑफ एनर्जी उनके बरकरार रहे, वो साथ के साथ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे. राइट. जनरल कॉमन पॉपुलेशन के लिए ये बताया जाता है कि सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, लेकिन एथलीट को वो एडवाइस आपको नहीं देनी चाहिए. मैं रिपीट कर रही हूँ, आप एथलीट्स के लिए से नो टू सॉल्ट का एडवाइस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट जो है
पसीने में निकलता है, जितना ज्यादा एथलीट्स पसीना होता है उतना ज्यादा नमक तो निकलता ही निकलता है। तो आप नो टू सॉल्ट करके एथलीट्स को नहीं बोल सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम्स है, बीपी है। हमारे बच्चे तो है नहीं। सो दिस इज नॉट एन एडवाइस फॉर आवर एथलीट्स, दिस इज फॉर पीपल हु हैव प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज। से नो टू शुगर, ये भी हम एडवाइस नहीं कर सकते एथलीट्स को। एथलीट्स शुगर खा सकते हैं, ठीक है। ये एडवाइस एथलीट्स को हम नहीं दे सकते कि आप शुगर मत खाना, कोई बात नहीं, खा सकते हैं। हाँ, थोड़े से मॉडरेट, मतलब कंट्रोल्ड फॉर्म पे खाना चाहिए। ओके, तो हम ये सारी चीजें हाँ, बच्चों की जिंदगी में कैसे inculcate करें। Before I say that, I have two important points to say in English. You should never say athletes not to eat salt. Athletes should consume salt, but in a very controlled manner, because they lose salt in the form of sweat. So they should eat salt. You should not advise saying that you should not eat salt. Number two, you should not advise athletes saying that you should not eat sugar. It is okay for athletes. It may be for us. We should not eat sugars, refined forms, but it is okay for athletes because they need source of energy, they need carbohydrates. अब चलते हैं कैसे steps to inculcate healthy food habits. How do we inculcate healthy food habits in athletes? First is we should ask our athletes to reflect upon themselves and see if they are consuming any healthy food, any unhealthy food. Once they look and introspect, then they will be able to see, these are healthy foods, I'm consuming these. These are unhealthy foods, I'm consuming, but I should not consume. So whatever is unhealthy, we should ask them to replace only those unhealthy foods. Because we have now discussed what are healthy and unhealthy. Okay, once we do this, what we have to do is we have to reinforce. Reinforce what? Reinforce good things. Encourage them and say, yes, you are doing this good. You're eating good food. You're eating healthy food. You have to reinforce. By doing this will become a habit. Actually, बच्चों में ये आदत हम कैसे लाएंगे हेल्दी खाना खाने के लिए? आप कहेंगे कि मैम मुश्किल है, डेफिनेटली मेरे साथ ही मुश्किल हो जाता है। मैं अपने बच्चों को इतना नॉलेज रख के इतने सालों बच्चों के साथ, एथलीट्स के साथ काम करते भी कभी कभी हम चूक जाते हैं, हम इतना जल्दी कन्विंस नहीं कर पाते हैं बच्चों को करने के लिए। तो हमें ये एक्चुअली करना कैसा है ना? बहुत सिंपल है। क्या करना चाहिए आपको? बच्चों को बोलना चाहिए कि बच्चे आपको ये चीजें खानी जरूरी है। आपके पास ऑप्शंस रह गया ना, इस क्लास में हमने पढ़ लिया जो हेल्दी है, अनहेल्दी है, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या है ये हमने देख लिया। तो आपको बच्चों से बताना है कि आप ये क्या, ये हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स देखा रहे हैं, ये अनहेल्दी ऑल्टरनेटिव्स देखें। एक बार उनको अपने आप को परखने के लिए बोलना चाहिए। परखने के बाद पता चल जाएगा कौन सा हेल्दी खा रहे हैं, कौन सा अनहेल्दी खा रहे हैं। जो हेल्दी खा रहे हैं उसको आप एनकरेज करना है, रीइंफोर्स करना है कि आपको एक खा सकते हैं। दूसरी तरफ आप ये करेंगे कि जो अनहेल्दी है वो धीरे धीरे आप कहेंगे उसको बदले आप ये खाओ, इसके बदले ये खाओ, ऐसे रिप्लेस करेंगे एंड उसको हम लगातार बच्चों को बोल के हम आदत बनाएंगे। कोचेस को कोचिंग करना आसान है, बच्चों को खिलाना मुश्किल है कंपैरेटिवली, करेक्ट? बिकॉज इतना आसान नहीं है वैसे आदतें बदलना, एंड खासतौर पे जो खाने को रिलेटेड आदतें बदलना बहुत ही मुश्किल है। सो वो धीरे धीरे ही होगा, एकदम नहीं होगा, बट हमें थोड़े से सब्र रख के हमें बच्चों के साथ देना जरूरी है, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना खाएं मैम, ये सवाल होगा ना। सो आपके स्क्रीन पे जो है ये फूड पिरामिड है, ये एक एग्जाम्पल है जो बताएगी कि आप कितना फूड खा सकते हैं। जैसे जितने भी अनाज हैं, अनाज क्या करेगी? आपको एनर्जी देगी। फल सब्जी क्या करेगी? हेल्दी रखेगी। मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स ये सारे क्या करेंगे? आपको बॉडी स्ट्रांग बनाएंगे, मसल्स बनाते आपको स्ट्रांग बना देंगे। मैंने ज्यादा वक्त ले लिया ना, मैं फटाफट फिनिश करने वाली हूँ, वन को खत्म करना था। एंड देन जो फैट्स एंड ऑयल स्वीट्स जो है वो कम खानी चाहिए, ठीक है? अब
तो इसको कैसे समझें? आपको फॉर एग्जाम्पल 6 to 11 सर्विंग्स खानी चाहिए अगर बताया गया है, या मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाती हूँ। फल 4 सर्विंग खाना चाहिए। 4 सर्विंग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक सर्विंग का फल का मतलब है 100 ग्राम, यानी कि एक एथलीट 400 ग्राम कम से कम सब्जी और फल खानी चाहिए। कम से कम सब्जी और फल खानी चाहिए। बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, स्पेशली बॉयज को सब्जी फल खिलाना बहुत मुश्किल है, एथलीट्स को भी, इवन इफ दे आर बॉयज। तो कम से कम 400 ग्राम सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खानी चाहिए। मिल्क कम से कम 400 ml। यहाँ पे हमने सर्विंग्स कितने देखे? 3 सर्विंग्स मिनिमम। मतलब जो बच्चा बिल्कुल ही दूध नहीं पीता है, मतलब कहते कि अरे यार, तो कोशिश करना चाहिए कि दूध के जैसे कोई भी चीज, आप दूध हो दही हो, कम से कम 300 ग्राम, राइट? वैसे आपको मैच करना पड़ेगा कि कितना सर्विंग्स कितने क्वांटिटी के साथ जाएगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, दीज आर द सर्विंग साइजेस मिनिमम दैट मस्ट बी कंज्यूम्ड. So what you have to tell your athletes is this servings must be consumed every day. That is if you see that it is going in a pyramidal structure, by the time it goes on top, it is going as a pyramid. So you should ask them to cut down on the quantity. And if you see here, protein source is comparatively less than carbohydrates. ये आपको याद रखना पड़ेगा, right? So this is an example of a healthy eating plate where half of the portion is whole grains, which means cereals and healthy protein. Half of it is vegetables and fruits. But this is at an initial stage, but if they go on for harder training, it will differ. Okay. So with this, I end the class. Thank you. I've been a little, I've taken a lot of your time. I will stop share. I will unmute you people. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Love from Haryana. Question and answer. Perfect class, ma'am. Thank you.